इस्राइली विदेश मंत्रालय ने सख्त चेतावनी दी है। और अब मैं आपको अल जजीरा की 2 रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले वो मंजर जब बाकायदा ड्रोन के जरिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर हमला किया गया। यह है बेंजामिन नेतन्याहू का जुल्म। किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से रोका गया, देखिए। As it sails towards Gaza, Israeli forces intercept and board one of the vessels making up the global Sumud flotilla. With those on board detained at gunpoint, they will be taken to Israel. Members of the flotilla call the operation active aggression and say it's illegal in international waters. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. Hours earlier, the Israeli Navy ordered the flotilla to change course. Please change your course. Replying over the radio, the crew identified themselves as civilians on an aid mission to Gaza. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that you've been starving to death. Activists volunteering for this mission say the international community is failing its legal obligations toward both the flotilla and to Palestinians. अब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का हिस्सा थी। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। और लगातार जो लोग इस कारवां में शामिल थे वो कह रहे हैं कि इस्राइल ने मानवाधिकार हनन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तमाम हदों को पार कर दिया है। देखते हैं अल जजीरा की ये रिपोर्ट। Countries have a responsibility to act to end a genocide, and also countries have a responsibility to protect their civilians. So we are sailing peacefully in international waters, and Israel is threatening and has also already undertaken these illegal actions against us. After communications systems were jammed, some boats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval vessels. The confrontation had been building since early on Tuesday when more than 40 boats entered what they called a high-risk area in the Mediterranean Sea, where the Israeli military has previously stopped humanitarian missions to Gaza. Israel calls this an active combat zone, but its operation has been directed against civilians, including Swedish activist Greta Thunberg, who was also arrested. Thousands of kilometers away on land, demonstrations broke out across nearly a dozen cities in Europe and elsewhere as word of the Israeli action spread. With more than 500 people taking part in the flotilla, despite many being detained, there's a sense of defiance and a commitment to continue to highlight the suffering of the Palestinian people in Gaza. दोस्तों, आप लोगों में से जो इस मामले को नहीं जानते, मैं अब आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के जरिए जुटाई गई जानकारी के मुताबिक मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और आज 3 अक्टूबर इस्राइल का जुल्म लगातार जारी है। जी हां, गजा में अब भी बमबारी जारी है और यह जुल्म ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर भी दिखाई दिया। आपके सामने इस खबर के मायने इस्राइल ने 1, 2, 3 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला नाम की एक मानवीय काफिले जिसमें 44 नाव थे और 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, साथ ही राहत सामग्री, उसे रोक दिया है जो गजा की 18 साल पुरानी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसमें मुख्य बातें क्या है दोस्तों, इस पर गौर फरमाया जाए। इस्राएली नौसेना ने गजा से करीब 70 नॉटिकल माइल दूर लगभग सभी नावों को घेर कर अपने कब्जे में ले लिया है और 400 से 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. सवाल ये दोस्तों कि इस फ्लोटिला का मकसद क्या था? इस ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का मकसद क्या था? आपके स्क्रीन पर फ्लोटिला का मकसद था गजा तक सीधी मदद पहुंचाना और दुनिया का ध्यान वहां की मानवीय स्थिति पर खींचना। इस्राइल का कहना है कि वो हथियारों की तस्करी रोकने के लिए नाकेबंदी लागू करता है और मदद को एशकेलन पोर्ट के जरिए भेजने की उसने पेशकश की थी, जिसे आयोजकों ने ठुकरा दिया था। और आपको समझना पड़ेगा कि आयोजकों ने क्यों ठुकराया था, क्योंकि एशकेलन पोर्ट के जरिए भेजा जाता
तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये मदद सीधे गजा के लोगों तक शायद ना पहुंचती। और जो मकसद था ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला का, वो मकसद ही पूरा नहीं होता। और यही वजह है कि एशक्लिन पोर्ट वाली जो पेशकश थी, उसे ठुकरा दिया गया। आगे, हिरासत में लिए गए लोगों को वकील से मिलने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने खराब बर्ताव और मारपीट की भी शिकायत की, लेकिन मौत या गंभीर चोट की आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इंटरसेप्शन से पहले, यानी रोकने से पहले, फ्लोटिला की नावों पर ड्रोन अटैक और कम्युनिकेशंस जैमिंग भी हुआ। आयोजकों का आरोप है कि इस्राएली नौसेना ने एक जहाज को डुबोने की कोशिश भी की। अब तक सिर्फ एक नाव मैरिनेट इस्राएल के कब्जे से बची है और समुद्र में आगे बढ़ रही है, जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने किया। और सीधे शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो यह घटना गजा की नाकेबंदी, इस्राएल की सुरक्षा नीति और वैश्विक मानवीय कोशिशों के बीच बढ़ते टकराव का ताजा उदाहरण, यानी ताजा मिसाल है। नेतन्याहू जितना भी जुल्म, जितनी भी जोर जबरदस्ती कर दे, मगर उसका विरोध किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज वॉशिंगटन डीसी में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। देखिए किस तरह से अमेरिका में फलस्तीनी, उनके समर्थक और फलस्तीनी मूल के लोग वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर उतरे और लगातार नारेबाजी की जा रही है। देखा जाए। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेशक ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, यानी कि उनके जुल्म को चुनौती देने वाली इस समुद्री कारवां को तहस नहस कर दिया हो, उसे बिखेर कर रख दिया हो, मगर इस वक्त एक नाव अब भी गजा की तरफ बढ़ रही है, उन्हें एक चुनौती दे रही है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक, और हो सकता है जब तक यह खबर आपके सामने आए इस्राएली फोर्सेस जो हैं इसे भी तबाह कर दें, मगर आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया से एक कारवां निकला था। उनका मकसद था गजा में जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, समुद्र के रास्ते उन्हें मदद देना। मगर इस्राएल ने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया है। उन्होंने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को रोक दिया है, कई जगहों पर हमला किया, कई जगहों पर बल प्रयोग किया और उन्हें वकीलों से मिलने ही नहीं दिया। इस तरह का जुल्म हो रहा है दोस्तों, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मगर अल जजीरा की खबर के मुताबिक यह जो एक बोट है वो अब भी गजा की तरफ बढ़ रही है, और यह अपने आप में एक सांकेतिक चीज है दोस्तों कि तमाम जुल्म, जोर जबरदस्ती के बावजूद एक नाव अब भी अपने उद्देश्य, अपने मकसद की तरफ बढ़ रही है। और जैसे मैंने बताया, हो सकता है कि इजरायली फोर्सेस इसे भी तबाह कर दें, इसे भी रोक दें, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में अल जजीरा का कहना है आपके स्क्रीन पर। अल जजीरा कहती है, इजराइल डिसमेंटल्स गजा ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला बट वन बोट सेल्स ऑन। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह वो नाव है जो लगातार गजा की तरफ बढ़ रही है। अल जजीरा इसके बारे में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। इस्राएली सेना ने ज्यादातर मानवीय फ्लोटिला, जहाजों का काफिला, उसे तोड़ दिया है जो गजा की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसमें शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दर्जनों जहाजों से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक यॉट अब भी, यानी कि एक नाव अब भी फलस्तीनी इलाके की ओर बढ़ रही है। तो हर गुजरते दिन के साथ नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है और नेतन्याहू खुद को दुनिया में अलग थलग पा रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इस वक्त स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, यह नेतन्याहू के खात्मे की शुरुआत है, उसके बर्बादी की दास्तान यहीं से लिखी जाने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अब खुलकर उनकी मदद में सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि नेतन्याहू क्यों इस तरह से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हाल ही में दोहा पर प्रहार किया गया था, दोहा पर हमला किया था, जिसको लेकर नेतन्याहू ने कतर से बाद में जाके माफी भी मांगी थी, मगर ट्रंप नाराज थे।
हालांकि इस्राएल ये दावा करता रहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया था, मगर ट्रंप नाराज थे क्योंकि इस वक्त यह व्यक्ति यानी नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए बेकाबू हो गया है। उसे अपने देश के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस्राएल की सड़कों पर कई लोग नारे लगा रहे हैं कि जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, पहले उन्हें छुड़ाइए, मगर यह व्यक्ति लगातार उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। इसने जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया है। इस्राएल के अंदर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 बड़े मामले हैं। उससे बचने की कोशिश की जा रही है और नेतन्याहू जानते हैं कि अगर हालात सामान हो गए तो उनका जेल जाना तय है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।